Class here. Again, I, KN Mishra, welcome all of you in online classes of science. Class at present we are studying about microorganism. Yesterday we have studied about bacteria, about shape and size of bacteria. As I told you, bacteria is of 1.25 micron size. And I have given you homework. Yesterday that read about useful एंड हार्मफुल बैक्टीरियाज. ये हमने होमवर्क दिया था. पता नहीं आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, हम उसको एक बार रिमाइंड कर दे रहे हैं. आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? सिंस बैक्टीरिया आर वेरी माइन्यूट, दे आर माइक्रोस्कोपिक, they cannot be seen by our naked eye, they may be unicellular or multicellular, they are plant like structures, they are having some special chemicals in their cell wall, they are responsible for various useful processes and for various unuseful harmful processes. Let us see what those processes are. Some bacteria are very useful for us, like in formation of curd and cheese. Some species of bacteria plays very important role. Now, second, bacteria act upon fruit juices and sugarcane juices to convert them into wines, beer and vinegar. ठीक है. थर्ड पॉइंट, बैक्टीरिया आर natural scavenger because bacteria used to decompose the waste material into the soil, so they are also known as natural scavenger or natural decomposer. Now next, many bacteria are responsible for rating of those stems which provides us fibers. किसी स्टेम का नाम जानते हैं जिससे फाइबर मिलता हो हमको? जूट. जूट का ही एक और नाम है पटसन, PATSUN. तो जूट और पटसन के रेटिंग प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. उस प्रोसेस को रेटिंग कहते हैं. और एक और प्रोसेस होता है लेदर की टैनिंग. टैनिंग ऑफ लेदर में भी बैक्टीरिया का बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस है. Next, for production of methane gas, methanogen bacteria are very useful. So bacteria may produce methane gas, which is domestic gas used in fuel as fuel. Now, bacteria present in alimentary canal of chew and cud animals helps in digestion of cellulose. चू एंड कड एनिमल के बक्कल कैविटी में, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, नेक रीजन. तो नेक रीजन में होते हैं बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. चू एंड कड एनिमल ही सेलुलोज लेते हैं, हम लोग सेलुलोज नहीं लेते. हम लोग ग्रास ईटिंग नहीं हैं, प्लांट ईटिंग है, लेकिन ग्रास ईटिंग एनिमल ह्यूमन बीइंग नहीं है. ठीक है. ये एक रोल हो गया, यूजफुल रोल. Now some bacteria used to produce some special type of antibiotics like streptomycin, kanamycin. These are various antibiotics produced by some bacteria. Next, rhizobium and some other nitrogen fixation bacteria can fix atmospheric nitrogen into soluble nitrate or nitrite form. एक और रोल आपको बता देते हैं. बैक्टीरिया फाउंड इन लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग. और ये करते क्या हैं लार्ज इंटेस्टाइन में रह के? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ विटामिन बी, बायोटीन, विटामिन B12 एंड विटामिन के. तो इतने विटामिन तो ऐसे हैं जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में. ये कुछ यूजफुल अप्रोचेस थे बैक्टीरिया के. कुछ हार्मफुल अप्रोचेस पे आते हैं. बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीज इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स आल्सो. फॉर एग्जांपल, इन प्लांट्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सिट्रस कैंकर and
लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन। और एनिमल्स में अगर बात करें तो एनिमल्स में बहुत सारी डिजीजेज हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं, जैसे कॉलरा, टाइफाइड, टिटनस, न्यूमोनिया, टीबी को ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ठीक है, एक और हार्मफुल रोल पे आते हैं। बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड, स्पॉइलेज ऑफ फ्रूट एंड स्पॉइलेज ऑफ वेजिटेबल्स, मीट, फिशेस एट्सेट्रा। और एक इसका हार्मफुल रोल है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया में कॉजेज फूड पॉइजनिंग, Class, this is all about bacteria. Let us know something about viruses. Students, let us know something about viruses. First of all, let me give you homework. Today's homework is draw figure 2.9, structure of virus. Draw figure 2.9, structure of virus. This is your homework for today. Now let us know something about viruses. Class, एक बात जरूर बताना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वायरसेस को एक साहब ने देखा, उनका नाम था इवानोस्की। कहाँ देखा इवानोस्की ने? इवानोस्की ने एक प्लांट में देखा। उस प्लांट का नाम था टोबैको प्लांट। उस टोबैको प्लांट की लीव्स पे ब्राउनिश स्पॉट, ब्लैकिश स्पॉट पड़ जा रहे थे। उस स्पॉट का जूस निकाल के उन्होंने बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेट किया सबसे पहले। तब उनको अंदाज़ा लगा, प्रिडिक्ट किया उन्होंने कि इसका मतलब ये हुआ कि वायरसेस जो हैं ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। उन्होंने सबसे पहले उस वायरस का नाम रखा जो टोबैको प्लांट में पाया गया था, TMV का मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है। ऑफ कोर्स viruses can live and grow only inside living cells of plants or animals. ये अपने से लिविंग नहीं रह सकते हैं, किसी प्लांट या किसी एनिमल सेल के भीतर ही ये लिविंग रहेंगे, नहीं तो नहीं लिविंग रहेंगे। लेट अस सी समथिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ वायरसेस। वायरसेस आर नॉट फ्री लिविंग, दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। साइजेस varies from 0.015 micron to 0.2 micron. Bacteria are very simple. They don't have cell wall or any cytoplasmic organelle. Clear? कुछ भी नहीं होता है वायरस के पास। Viruses can grow and multiply only in living cells of organisms, whether they are plant or animal. Next, viruses are said to be link between living and non-living. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में आपसे। Viruses are link between living and non-living. Viruses can be stored as salt or sugar for many years. कई सालों तक रख सकते हैं स्टोर करके शुगर की तरह बॉक्स में। ठीक है। और अच्छा, ये भी लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट्स ऑन देम। किसी भी एंटीबायोटिक्स का वायरसेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? बिकॉज वायरसेस डोंट हैव देयर ओन मेटाबॉलिज्म। इनके पास अपना कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। जिस सेल में ये पहुंच गए उस सेल के मेटाबॉलिज्म को अपना मेटाबॉलिज्म बना लेते हैं, इसीलिए कोई एंटीबायोटिक इनके ऊपर इफेक्ट नहीं करती है। ठीक है। प्लांट में भी पाए जाते हैं ये वायरसेस और एनिमल में भी पाए जाते हैं। प्लांट वाले को प्लांट वायरस कहेंगे, एनिमल वाले को एनिमल वायरस कहेंगे। इतना समझ में आया? ह्यूमन बीइंग्स में बहुत सारी डिजीजेस हैं जो वायरस से होते हैं और कभी नहीं ठीक होते हैं। ये भी साथ में हम जोड़ दे रहे हैं, कभी नहीं ठीक होते हैं। और इनमें से ज़्यादातर डिजीजेस का नाम बच्चों आपने सुना भी होगा। फॉर एग्जाम्पल HIV का पूरा नेम है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। एक और AIDS डिजीज़ है ह्यूमन बीइंग की, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक और डिजीज़ है कैंसर, वायरस से होने वाली। एक और डिजीज़ है FMDV, फूड एंड माउथ डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस। ठीक है।
ये कुछ डिजीज़ हैं जो ह्यूमन बींग्स को हो जाती हैं वायरस से। एक डिजीज़ यहाँ पे हमने लिखा है TMV, ये प्लांट की डिजीज़ है। और एक खास वायरस के बारे में आपको बताना चाहेंगे, वो वायरस जो जिसका फूड है बैक्टीरिया। एक ऐसा वायरस भी है जिसका फूड है, बहुत टेस्टी डिलीशियस फूड है उसका, बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया को खाता है। और आश्चर्यजनक बात है, यही वायरस हमारे गंगा जल में पड़ा होता है, जमजम के जल में पड़ा होता है। इसीलिए आबे जमजम और गंगा जल ये दोनों कभी ख़राब नहीं होते, क्योंकि इन दोनों में वो खास वायरस है जो बैक्टीरिया को खा लेता है और वो पानी कभी ख़राब नहीं होता दोनों जगह का। उस वायरस का नाम क्या है? उस वायरस को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, या इसी को शॉर्ट में कहा जाता है फेज वायरस। ठीक है क्लास, दिस इज ऑल अबाउट वायरसेस। About fungi, we will study in later online classes. This is all for today. Do your homework in time, class. Stay home, be safe. Thank you, class. Thank you.